میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر 19 سال کے اندر ترقی ہوئی ہے تو بس اتنی ترقی ہوئی کہ 19 سال پہلے نہ لڑکوں کے ہاتھ میں موبائل تھا نہ لڑکیوں کے ہاتھ میں، لیکن آج 19 سال کے بعد ننھے سے بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ موبائل میں وہ کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور اپنے اوقات کن کاموں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں زیادہ وقت آپ کا لینے کی بجائے آپ کی سوچ کی تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے اندر آپ اپنے دل و دماغ کو منور و مجلہ کر کے اٹھیں۔ یقیناً مجھ سے پیشتر جتنے بھی واعظین تشریف لائے، مبلغین تشریف لائے، انہوں نے کچھ نہ کچھ آپ کے ضمیر کے حوالے، کچھ نہ کچھ آپ کے دل کے حوالے انہوں نے باتیں رکھی ہوں گی جو آپ کے لیے کارآمد اور مفید ہوں گی۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ بچے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کوئی چپ کراتا اور انہیں خاموشی سے بیٹھنے کی کوئی تاکید کرتا، تاکہ بات اچھی طریقے سے ہو سکے اور مقصد بھی کسی حد تک پورا ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ کے حوالے سے حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر آئے اور انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان۔ مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان جو بتایا، اس ایمان کو مسلمان اپنی زندگی میں تلاش کرے، مسلمان اپنے افکار و نظریات و خیالات میں تلاش کرے، مسلمان اپنے عادات و اطوار میں تلاش کرے، اور اس کے بعد خود ہی فیصلہ کرے کہ جس ایمان کے حوالے سے رسول اعظم نے فرمایا کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور موجود ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں وہ ایمان جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج اس ایمان کو تلاش کیا جائے تو 90% سے زیادہ مسلمانوں میں وہ کمال ایمان، وہ اوصاف ایمان نظر نہیں آئیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، سوال کرنے والے نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکیاں تجھے خوش کر دیں اور تیرے گناہ تجھے رنجیدہ کر دیں، بس تو مومن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی کر کے خوش ہونا اور گناہ کر کے افسردہ ہونا یہ صاحب ایمان کی علامت ہے، اور جو نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کر کے غمگین ہوتا ہے، کوئی اسے کچھ بھی کہے، مصطفیٰ جان رحمت کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہے۔ آج دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں میں نیکیوں کا شوق ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کا جذبہ ختم ہو چکا، مسلمانوں میں نیکیوں کی لالچ ختم ہو چکی، مسلمانوں کا نیکیوں کی طرف بڑھنا کم ہو چکا، مسلمانوں کے اندر نیکی کا جذبہ کم ہو چکا، مسلمانوں کا اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنے کا جذبہ ختم ہو چکا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمان نیکی کر کے خوش ہوتا تھا، اور آج کا مسلمان اپنی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ معاذ اللہ یہ تصور کرتا ہے
कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं तबाह हूं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस कौम की सोच इतनी घटिया बन चुकी हो कि इस्लाम को वो जवाल का सबब समझता हो, वो कौम दुनिया में तरक्की करने के लायक नहीं हो सकती। कौमों का मामला तो ये होता है कि वो जिस मजहब पर कायम हैं, जिस मजहब के मानने वाले हैं, उस मजहब को सबसे बेहतर, सबसे अच्छा, बल्कि हमारा दीन जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है, ये तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। और अल्लाह ने हमें जमीन और आसमान देकर, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बीवी की कुछ पसंद होती है, माँ की कुछ पसंद होती है, बाप की कुछ पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने हमें जमीन अता फरमाई, लेकिन ये नहीं फरमाया कि मैंने जमीन तुम्हारे लिए पसंद की है। आसमान अता फरमाया, ये नहीं फरमाया कि आसमान तुम्हारे लिए पसंद किया है। चांद और सूरज उसने अता फरमाए, ये नहीं फरमाया कि चांद और सूरज मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया। लेकिन जब परवरदिगार दीन इस्लाम की बात करता है तो फरमाता है, रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को पसंद कर लिया दीन की हैसियत से। पता ये चला दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लें। परवरदिगार जल्ल जलालहू के बंदे, मोमिन बंदों की शान ये हुआ करती है, वो नेकियों से मुंह नहीं चुराया करते, नेकियों से मुंह नहीं छुपाया करते, नेकियों से मुंह नहीं चुराया करते, बल्कि वो नेकियों के आदी बनते हैं, नेकियों के सिलसिले में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज सलाम ही को ले लीजिए, सलाम कितनी बड़ी नेकी है। अगर आप किसी को अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं, तो आपके नाम अमाल के अंदर 30 नेकियां लिख दी जाती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाते करीमा का जरा मुलाहिजा करें तो आपको महसूस होगा। आज शौहर बीवी को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, अमीर गरीब को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, सेठ नौकर को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, उस्ताद शागिर्द को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है, पीर मुरीद को सलाम करने के लिए हिचकिचाता है। लेकिन पैगंबर रहमत से बढ़कर अल्लाह ने किसी इंसान को पैदा नहीं किया, लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा के हवाले से मदीने की गली के बच्चे ये कहते हैं कि कभी सरकार ने हमको पहले सलाम करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हमेशा सरकार ने हमको पहले सलाम किया है। आप अंदाजा लगाएं, रसूल रहमत तो हमें नेकियों की लालच दे रहे हैं, नेकियों को हासिल करने का मौका दे रहे हैं, नेकियों के हुसूल का जज्बा दे रहे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हाल यह है कि नेकियों से मुंह चुरा रही है, नेकियों से अपने दामन को खाली रख रही है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकी बहुत बड़ा सरमाया है। आप जरा सोचें, इंसान आज का मुसलमान ये तसव्वुर करता है हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट माअज़ल्लाह इस्लाम है या नेकी है। आप जरा सोचें, क्या किसी मुसलमान की पोजीशन ये है कि चेहरे पे दाढ़ी रख करके वो ये तसव्वुर करे कि इंशाअल्लाह मेरी दुनिया भी संवर जाएगी और मेरी आखिरत भी संवर जाएगी? नहीं नहीं, बल्कि बहुत सारे नौजवान ये सोचते हैं दाढ़ी रखूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो छोकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रखूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा, दाढ़ी रखूंगा तो तरक्की नहीं मिलेगी। जिस कौम का मिजाज ये हो कि नबी की सुन्नत को तरक्की के लिए रुकावट तसव्वुर करे, वो कौम जमीन पर कामयाब नहीं हो सकती, वो कौम जमीन पर कामरान नहीं हो सकती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखें, सहाबाए किराम का मामूल ये था कि नेकी में किसी को आगे निकलने ही नहीं देते थे। छोटी सी छोटी नेकी का मौका मिल गया तो करते चले जाते, किसी को आगे निकलने न देते। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, आज इंसान बड़ा हो जाए तो उसके बाद नेकियों का तसव्वुर, नेकियों का जज्बा सर्द पड़ता चला जाता है। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला करें
तो आपको पता चलेगा अमीरुल मुमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की आदत थी कि मदीने की एक गली से गुजरा करते थे। उस गली के अंदर कुछ बच्चियां रहती थीं जिनको बकरी का दूध निकालना नहीं आता था, तो सिद्दीक अकबर उन बच्चियों की बकरी के दूध को निकालकर धोकर उन्हें दे दिया करते थे। रसूल आजम का विसाल हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जब सिद्दीक अकबर मनसबे खिलाफत पर फाइज हुए तो वो बच्चियां ये तसव्वुर करने लगी कि अब तो अबू बकर खलीफा हो चुके हैं, भला इतने ऊंचे मनसब पर फाइज होने के बाद हमारी बकरियों के दूध को धोकर वो कैसे अता फरमाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए, दूसरे रोज खिलाफत के मनसब पर फाइज होने के बाद उसी मदीने की गली से गुजरते हैं, बच्चियों का जुमला कानों से टकराता है, रुक जाते हैं, कहते हैं लाओ अपनी बकरियों को, मैं बकरियों के दूध को निकालकर बकरी का दूध धोकर तुम्हें दे दूं। बच्चियों ने कहा आप खलीफा हैं, हमें शर्म आती है आपसे काम लेते हुए। कुर्बान जाइए सिद्दीक अकबर के जवाब पर, इरशाद फरमाते हैं खलीफा तो आज हुआ हूं, गुलाम मुस्तफा तो पहले से हूं। आप अंदाजा लगाएं ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या समझते हो नेकी को? नेकी कितना बड़ा सरमाया है। कयामत में करेंसी काम नहीं आएगी, कयामत में बंगला काम नहीं आएगा, कयामत में डॉलर काम नहीं आएंगे, कयामत में रुपया काम नहीं आएगा, कयामत में नेकियां काम आएंगी। इसलिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर नेकी हासिल करने का और नेकी करने का मौका अता फरमाया। यहां तक फरमाया किसी मुसलमान से मुस्कुरा करके मिलो, इस पर भी अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाता है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अर्ज करने का मंशा यह है कि नेकी करके कभी यह ना सोचना कि आप जो है घाटे के अंदर हो, आप खसारे के अंदर हो। नहीं नहीं, बल्कि जब जब अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाए, उस नेकी को करने के बाद अपने कल्ब में सुरूर महसूस करो, अपने कल्ब के अंदर खुशी महसूस करो कि उस करीम का करम है कि उसने हमें नेकी हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने वाज़े लफ्जों में फरमाया वला तस्तविल हसना वला सय्यिआ, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हैं। और परवरदिगार जल्ल जलालहू जब किसी को नेकी की तौफीक अता फरमाता है और कोई बंदा अगर नेकी कर ले तो नेकी को अपना कमाल न समझे, बल्कि कुरान कहता है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जब तुझे कोई नेकी पहुंचे तो ये समझ के ये अल्लाह की तरफ से है। पता ये चला जब किसी को अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमाता है तो ये अल्लाह की खास नजरे करम उस पर होती है, इसलिए उसने उसे नेकी की तौफीक अता फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नेकी करके कभी अफसुर्दा मत हो जाओ, नेकी करके कभी गमगीन मत हो जाया करो। जब जब नेकी का मौका मिले और तुमसे नेकी सरजद हो जाए तो अपने दिल में उसकी खुशी महसूस करो। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आज आप इस इज्तिमा में हाजिर हैं, आप में से कुछ लोगों ने इशा की नमाज अदा की होगी, कुछ लोगों ने इशा की नमाज नहीं अदा की होगी। जिन लोगों ने अदा कर ली वो मुबारकबाद के लायक हैं, और जिन्होंने अदा नहीं की वो दिल के अंदर ये महसूस करें कि हम इज्तिमा के इख्तिताम पर पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अब इशा की नमाज के तसव्वुर के आते ही, ख्याल के आते ही बंदा ये सोचेगा मुझे वुजू करना पड़ेगा, मुझे जो है वो उसके बाद खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे उसके बाद रकातें पढ़नी पड़ेंगी, नमाज अदा करनी पड़ेगी, सजदे में जाना पड़ेगा। यार बड़ा बोझ महसूस होता है। सुन लो ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर ये ख्याल नेकी में सुस्ती का तुम्हारे दिल में पैदा होता है तो ये तुम्हारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। लेकिन अगर तुम्हारी पोजीशन ये हो जाए कि तुम उठो, वुजू करो, इशा की नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद अपने दिल में तुम खुशी महसूस करो, अब तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मुस्तफा जान रहमत तुम्हारे ईमान की गवाही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।